Calcutta INS Netaji Subhas. From there, I joined as a commissioning crew of one small ship, Seawar Defense Boat Tango 54. This was a small craft constructed or built by Garden Reach Shipbuilders, Calcutta. I spent about 2 years on board this ship, and this was a unique experience, a first sea experience for me. Thereafter, I moved to a depot ship in Visakhapatnam, known as INS Sarkars. So here, again, I was interested in the logistic assignments. In Sarkars, I spent about 2 years period. And thereafter, I was moved back to Bombay in one of the frigate ship known as INS Taragiri. On board Taragiri, I spent about 1 year. And thereafter, I was selected for a foreign assignment in connection with acquisition of INS Virat from United Kingdom. I was in acquisition team and spent about 2 years in United Kingdom. Got the ship refitted. इनको कोई बता देगा? एक मिनट बनवारी, जस्ट मिनट। इनको चंद्र वर्मा जी, सत्य प्रकाश जी और ये मैडम मिस नीलम सपना जी, इनको जब प्लीज को फोन कर बता दीजिए, म्यूट कर दे इनको। एक स्पीकर बोल रहा है बीच में, इनको कोई बेच रहा है ना, प्लीज इनको बता दीजिए। चंद्र वर्मा म्यूट कर दिया है, सत्य प्रकाश जी भी कर रहे हैं, मिस नीलम सपना जो है इनका भी आवाज बहुत आ रही है, प्लीज इनको बता दीजिए म्यूट कर दें इसको। या सॉरी आप अपने पैनल पे से सबको कर दीजिए ना। हाँ, मैं अपने पैनल पे से कर रही हूँ, सबको कर दिया मैंने, किया है उसको। ओके, डन। सर प्लीज कंटिन्यू। Yeah, ma'am. Thereafter, in UK, I spent about 2 years in connection with the acquisition of INS Virat. We brought the ship to India in July 1987. And thereafter, I spent about 2 years on board this mighty aircraft carrier. I was logistic officer on board the ship. And thereafter, I was moved to INS Shilka, the premier training institute of Navy in Eastern Coast. I was logistic officer of that unit training establishment. And after having spent about 3 years, then I was moved to base logistic office at Goa, which is a logistic unit, and entrusted with the responsibility of providing logistic support to all the ships and units based at Goa. I spent about 3 years in Goa. Then I was moved to Naval Engineering College at Lonavala as logistic officer. I spent about 4 years over there. And then I was moved to my alma mater, INS Hamla, the logistic training institute at Mumbai, where I was appointed as directing staff for imparting training to young logisticians in Navy. I spent good long 6 years in INS Hamla, and thereafter I was moved to Karwar, a new naval base, as commissioning base whistling officer. I raised this depot, and this was also a very unique experience for me to raise a depot. This depot was responsible for providing logistic coverage to all the ships based at Karwar and visiting ships, besides local shore units at Karwar. Then in 2009, I was moved to Headquarters Western Naval Command as Senior Staff Officer, Logistics. So I was responsible for providing logistic coverage to all the ships and establishment in Western Naval Command. Conclusion of contracts for supply of
ration, clothing. And apart from this, I was also given additional responsibility of handling a regimental corpus of about 60 crores. I spent about 6 years in Western Naval Command as senior staff officer. Thereafter, I was moved to Naval Headquarters as Joint Director of Planning, Clothing and Victualling Directorate. I spent 1 year there. So for me, it was a varied experience from logistics point of view. Yeah, ma'am, anything else? No, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Now next, मैं अब एयर कमोडोर चंद्रमौली जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। सर प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। उर्वशी जी, मैं बीच में ये कहना चाहूंगी कि अगर बीच में जिस भी साइड से वॉइस आ रही है उन्हें आप अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिएगा। या जी सर, चंद्रमौली सर। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम। मैं 33 साल की फौजी नौकरी को यहाँ पे ये बता करके मैं कहाँ गया क्या गया ये मैं नहीं कहूँगा। आपका जो मुद्दा है उस पे मैं आता हूँ, क्योंकि कुछ और भी लोग सुन रहे होंगे जो नॉन फौजी हैं। फौज के अंदर जाने के लिए इंसान के अंदर एक लिबर होता है जो हर एक के अंदर होता है, खाली उसको जगाने की चाहत होती है। क्या होता है कि इंसान जो पैदा होता है वो स्कूल में जाता है, हम भी स्कूल में गए थे, खेल कूद करता है, पढ़ाई करता है, हम भी खेल कूद और पढ़ाई करते थे। कहीं न कहीं पे उस ब्रेन के अंदर एक फौजी का जो खटका होता है उसको स्विच ऑन करने के लिए या तो कोई ट्रेनिंग होती है या कोई पेरेंट्स होते हैं या दोस्त होते हैं या टीचर होते हैं जो उसे जगाता है। जब वो जागता है, जब उसमें जुनून पैदा होता है कि हाँ मैं फौज में जाऊंगा, फौजी बनूंगा, तो वो उसको डेवलप करता है, उस तरफ डेवलप होता है। और फौजी बनने के लिए जरूरी नहीं कि बंदूक ही चलाना वो उसमें सीख जाएगा, सब कुछ ट्रेनिंग में आ जाता है। अपना कैलिबर को जगाता है कोई न कोई, चाहे वो फ्रेंड्स हो, टीचर हो, चाहे दोस्त हो, चाहे अपने खुद के अंदर जुनून पैदा होता है। जैसे भी स्पीकर ने बताया कि मैं बनना चाहता था फौजी अफसर, सो वो होता है। नाउ जब वो जुनून पैदा हो गया है, वो ट्रेनिंग में जाता है, वो ट्रेनिंग करता है, वहां पे उसको फौजी बनने के लिए सब कुछ सिखाया जाता है। तो मैं पैदा होता बंदूक नहीं चलाने लगा था, मैं पैदा होता हवाई जहाज नहीं उड़ाने लगा था, पैदा होकर कोई शिप चलाना नहीं सीखा था, मुझे सिखाया गया है, लेकिन दिमाग के अंदर किसी ने जुनून पैदा किया था। तो पहली बात तो ये हो गई है। जी सर। दूसरी बात, फौजी जब आता है अपनी फर्स्ट इनिशियल ट्रेनिंग के अंदर, चाहे वो सैनिक स्कूल से एनडीए जाए या डायरेक्टली एनडीए जाए या एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं कहीं और से डायरेक्ट एंट्री एनसीसी वगैरह करके जाए, जब वो वहां पहुंच जाता है तो उसके जैसे स्पीकर्स बोला है और जो स्पीकर बोलेंगे, आर्मी नेवी एयरफोर्स, फौज है पूरी हिंदुस्तान की वर्ल्ड के अंदर। इसके अलावा कुछ पैरामिलिट्री होती है, कुछ स्पेशलिस्ट फोर्सेस हो जाती है। लेट्स से सेना जमीन पे लड़ाई करने वाली, नेवी जल जो है नेवी वो अपने पानी में लड़ाई करने के लिए, और लास्ट में है वायुसेना जो हवा में लड़ाई करती है। तो बेसिक इनकी ट्रेनिंग होती है। आर्मी वाले भी हवाई जहाज उड़ा लेते हैं और हम भी जमीन पे कर सकते हैं, और जो नेवी वाले होते हैं वो शिप से आकर के जमीन पे लड़ाई कर सकते हैं। सबकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट स्टेप हमने कहा कि जब जुनून होकर जब जो इंसान चला जाता है, अफसर बने चाहे जवान बने, उसकी ट्रेनिंग के बाद में स्पेशलिस्ट फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है, चाहे हवाई जहाज उड़ाए, चाहे जहाज चलाए, चाहे अपना बंदूक चला के थल सेना के अंदर गन चला करके, अपने मिसाइल चला करके अपनी सर्विस चला जाता। तीसरी चीज, जब वो वहां जाता है तो लोग सोचते हैं फौज में चला गया, अब तो ये मरने के लिए चला गया। आज तक किसी ने ये नहीं कहा है कि फौज में चले जाओ मर जाओ, किसी ने नहीं कहा है। फौज में जब भी जाता है उसको 1000 सेफ्टी बताई जाती है कि कैसे नहीं मरो, बताया जाता है कैसे दुश्मन को मारो, कैसे दुश्मन को रास्ते से अलग करो, कैसे देश की सेवा करो, और कैसे अपने आप को बचाओ ताकि तुम उसके दूसरे दुश्मन, तीसरे दुश्मन ये करते रहो। लेकिन ऐसा करते हुए अगर तुम्हें जान की बाजी देनी पड़े
तुम मत कतराओ, ये सिखाया जाता है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि फौज में चला गया मर जाओ, जाके मर जाओ, किसी ने ये नहीं कहा। और ये धारणा होती है सिविल के अंदर, फौजी बन गया और तो मरने से डरता नहीं है, और डरते मरने से, सब डरते हैं। लेकिन दिमाग में घुसा दिया है तुम बचोगे तो दूसरे दुश्मन को मारोगे, फिर बचोगे तो तीसरे दुश्मन मारोगे, और इस तरह सरहद की तुम रक्षा कर पाओगे। और तो अगर खड़ा होकर कर रहा है चलो मैं तो सुसाइड करने के लिए, मरने के लिए जा रहा हूँ, ये बेवकूफ की बात है। ये सोचना भी गलत है कि फौजी को सिखाया जाता मरने के लिए। समझ गया? तो कार्य करते करते अगर जान की बाजी देनी पड़े तो मत कतराओ। पर कोई फौज आगे नहीं चला मैं बंदूक चलाऊंगा, मार रहे मेरे को, मैं तेरे मर के दिखाता हूँ, ऐसा कोई ट्रेनिंग किसी की नहीं होती है। तो ये तीसरी चीज मैंने आपको बताई हुई है जो फौजी होता है। चौथी चीज ये है कि अब मैं अपनी उसमें आता हूँ, मैं कहाँ गया क्या गया नहीं बताऊंगा आपको, मैं अपनी एयरफोर्स की बात बताई। तो मैंने जनरल फौजी की बात बता दी। एयरफोर्स की मैं एक ही यहाँ पे एयरफोर्स कहूँ, आर्मी के कई यहाँ पे, नेवी का भी एक ही है। सो एयरफोर्स में क्या होता है, हमारे एक टिपिकल ट्रेनिंग के बाद में क्या होता है कि हम एक टीम में लड़ाई नहीं होते, जैसे प्लाटून हो जाता है या एक जहाज, वो एक अकेला फाइटर पायलट होता है, वो पूरे एक जहाज में होता है। और उस जहाज में मतलब कि हथियार होते हैं, स्पीड होती है, वो उसके लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, उसकी ट्रेनिंग की गई है। हम पैदा हुए हैं जमीन पे रहने के लिए, अपना रोटी खाओ और वो दाल खाओ जियो, लेकिन उस जहाज में बैठा दिया जाता है जिसके अंदर हमारी ट्रेनिंग होती है। तो हमारे वहां पे ऐसा कोई नहीं है कि मैकेनिक है भाई साहब जरा हमारे हवा भर देना या तेल डाल देना, नहीं। वो जहाज में अकेला पायलट होता है, वो अकेला उस 100 करोड़ का जहाज हो, 200 करोड़ का, 300 करोड़, आजकल 400, 500, 600 करोड़ के जहाज आते हैं, उसका वो मालिक होता है, उसका वो होता है। और उसके दिमाग में एक ही चीज होती है, टास्क, जिस टास्क के लिए गया हुआ है। हम ये नहीं कहते हैं चलो आज जहाज लेके चलते हैं, सब्जी खरीदने चलते हैं, चलो आज पिकनिक चलते हैं, नहीं। जहाज में जो बैठ जाता है उसको एक टास्क होता है। आज का टास्क ये है कि जहाज इतनी सेकंड, इतने बज के इतने सेकंड में स्टार्ट करोगे, वहां जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा वगैरह वगैरह। सो आप जितने भी फौजी साहब मिल रहे हो, उन फौजी की हर एक के दिमाग में एक टास्क होता है कि आप 6 लोग जाएंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, देखेंगे कोई दुश्मन तो नहीं है या ऐसा वैसा तो नहीं है। आप 20 लोग जाएंगे, आप 50 लोग जाएंगे, आप कमांड करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जवान किससे कर रहे हैं। जवान को ट्रेनिंग होती है कि आपके हथियार चलाना है, आपको वहां जाना है, करना है। हर एक का टास्क होता है, वो उसी टास्क के लिए जीता है। और एयरफोर्स के अंदर हमारा टास्क होता है अपने को जहाज को सेफली लेके जाना, और जो टास्क दिया उसको करना, और सेफली वापस आना, ताकि दोबारा आप जहाज लेकर के फिर से टास्क कर सको। तो ये कोई मरने मारने के लिए खेल नहीं किया जाता है, चलो जहाज लेके जाओ, मर जाना आके देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब जो आपने कुछ चीजें पूछी है कि हाँ हमको फैमिली से दूर रहना पड़ता है, ये बड़ी वो है। और इसमें आर्मी सबसे ज्यादा सफर करती है। आर्मी कई साल महीनों दूर रहती है, नेवी कई महीने कई साल वो भी दूर चली जाती है। हमारे एयरफोर्स में वो चीज नहीं होती है। एयरफोर्स वाले हमेशा अपने फैमिली स्टेशन में रहते हैं, रह सकते हैं, तो ये एक हमारा एक फायदा होता है। लेकिन रिस्क इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा रिस्की हमारी लाइफ होती है, जब जहाज में बैठा इंसान स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि वो एक ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन है, ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन है, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट, उसमें जान भी जा सकती है, कुछ आग वाग भी जल जाती है, क्रैशेस भी होते हैं। ऐसा साल 2 साल 3 साल में एक बार हर जगह होता है। और सबसे दुख भरा मोमेंट ये होता है कि जो कमांडर होता है, मैं भी कमांडर रह चुका हूँ, जाकर के फैमिली को ये कहना है कि आप भी अकेले हैं, आपके वो नहीं रहे हैं, कहना सबसे एक दुखद मोमेंट होता है। और एवरीबॉडी हैज टू फेस इट वंस इन अ व्हाइल। तो स्टेशन में हमारा ऐसा होता है, और वो एक अजीब सा एक माहौल सा बना होता है, जिसके अंदर सीनियर्स होते हैं, जैसे किसी भाई साहब ने बताया था भी कि एक सोशल लाइफ हमारी होती है, इसी तरह एयरफोर्स के अंदर सोशल लाइफ हमारी ज्यादा होती है क्योंकि फैमिली होती है। और एक वो मोमेंट हमको फेस करना पड़ता है, जब जाकर के हमको कहना पड़ता है कि सॉरी देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये कुछ हमारे एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि फौज क्या होती है, फौजी क्या करता है, फौजी किस तरह से अपनी जिंदगी जीता है विद फैमिली और फैमिली। फाइनली जब हम रिटायर होते हैं तो
बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ हमारी होती है और बहुत ही सेटिस्फाई होकर रिटायर होते हैं, क्योंकि हमने 30-35 साल 20 साल जो भी हमने किया हुआ है उसमें हमने अपना कर्म किया हुआ, और कर्म करने से जो सेटिस्फेक्शन में मिलता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हम जितने भी रिटायर्ड लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट है और सर ऊपर करके अभी भी जी रहे हैं, और यही हमने फौज में सीखा है। और यही मैं चाहता हूँ कि आज के यंगस्टर्स यही सीखे कि ऐसे काम करके नहीं घर में आए कि छुप से छुपाने पड़े, सर ऊपर करके जिए, और सबको ये हम मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक और मार्गदर्शन कराने वाली बातें आपने बताई हैं, बहुत ही ओजपूर्ण बातें आपने कही हैं सर, और इसके लिए आपका बहुत मैं बहुत बोलना धन्यवाद। चाहूंगी उर्वशी जी। हाँ, हेलो। हाँ, सर ने जो अभी अपने स्पीच में जो लाइन बोली कि कर्म सबसे बड़ी चीज है, मीन्स अपनी लाइफ के जो हमारा टाइम है उसमें हमें ये सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हमारे कर्म बहुत अच्छे थे। तो सल्यूट सर, ये लाइन वास्तव में एक बहुत अच्छा मैसेज देती है कि अपने कर्म हमेशा ऐसे रखो कि हमें कभी पछतावा नहीं हो कि हमने कुछ किया नहीं। तो आगे नहीं हो ऋषि जी? मैं एक मिनट एक कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जी, अर्चना मत कुछ पूछ सकती हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल। मैं तो एक्चुअली अभी सभी के लिए है कि आज के जो समय में ये वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात चल रही है, और अभी हमने जो 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस पे जो परेड में हमने जो महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण देखा, उसके बारे में आप लोगों के क्या विचार है थोड़े से, कि कैसे वो लोग इतना अपने आप को सशक्त कर रही हैं, और क्या वो आगे भी सफलतापूर्वक इस कार्य को करती रहेंगी, क्योंकि ये एक हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया है आजकल। बिल्कुल मैम। अब हमारे साथ में आई थिंक कर्नल वाई के माथुर जी से मैं ये प्रश्न करना चाहूंगी, जो कि अभी अर्चना माथुर जी ने किया है, वही प्रश्न मैं आपसे करना चाहती हूँ। कर्नल वाई के माथुर जी, प्लीज आप इसका आंसर दें। जी जी, सबसे पहले सबको नमस्कार। और मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय एंड मीनाक्षी जी से कि आप हमारा जो नाम स्टार्ट करती है ना, वो क्या रिटायर्ड, आपको ये बताना चाहूँ हम रिटायर्ड नहीं है, हम सिर्फ री अटायर्ड हैं। हमने अपना वस्त्र चेंज किया है, बाकी रिटायरमेंट वाली कोई बात ही नहीं है हमारे के अंदर। अगर उसको देखें, हमारा जो नाम पद लिखा जाता है उसमें रिटायर्ड को सबसे आखिर में डाला जाता है। सबसे पहले पदवी नाम तो ये देखिए आप, एक तो सबसे बड़ी बात तो हम भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व हैं, जैसा कि कहा है, हम अभूतपूर्व हैं। और अभूतपूर्व हम क्यों हैं उसका रीजन भी उन्होंने बताया कि हमने कर्म ही किया है, और जो कर्म करता है और किसी लाग लपेट में नहीं होता है, वो आखिर में अपने आप को अभूतपूर्व भी प्रूव करता है। अभी मैं आता हूँ आपके फ्रेंड से। सर देखिए, पहले तो मैं ये बता रहा था, अजीत ने बताया कि उन्होंने किसी एनसीसी कैंप में मम्मी को लिख दिया कि मैंने प्रॉमिस कर लिया ज्वाइन करूंगा आर्मी। कोई स्पार्क जो चंद्रमौली सर ने बताया वो खटका कोई स्टार्ट करेगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा, जब मैं एनसीसी में था तो वो वर्दी वाले बांके जवान स्मार्ट पतली कमर वाले वो ही इंप्रेस करते थे मेरे को। मैंने कहा ये कौन है भाई, ये इतने अच्छे क्यों लगते हैं, मुझे भी ऐसा बनना है। तो ये एक स्पार्क स्टार्ट हुआ। अच्छा, अभी मैं आगे आता हूं। ऑफिसर जवान, एक अफसर एक जवान। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब मेरे 10-12 साल की सर्विस हो गई मेरी, उस समय मेरे ताऊजी ने मेरे पिताजी से पूछा कि बेटा, छोटे भाई से पूछा कि राम साहब ये बताओ, ये जो तुम्हारा बेटा है ये फौज में अफसर है या जवान है? तो आपको ताज्जुब होगा मेरे पिताजी का जवाब सुनकर के, कि मेरे पिताजी ने उनको कहा सोच के कि देखिए भाई साहब, मेहनती लड़का है, ईमानदार है, नौकरी कर रहा है बड़ी ईमानदारी से, ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ रिटायरमेंट से पहले पक्का अफसर बन जाएगा। जब मैं मेजर था ऑलरेडी, तो उनको वो कंसेप्ट नहीं, उनको एक फौज का कंसेप्ट है कि फौज में गया है, फौज की ड्यूटी कर रहा है, वो क्या है, वो जो कर रहा है वो अपने आप कर रहा है। तो एक तो ये फर्क आता। दूसरा, जब मैंने ज्वाइन कर ली, मेरे बेटे ने मोटिवेट होकर के उसने ज्वाइन कर ली, उसने अपने कोर्समेट जो महिलाएं आजकल आर्मी में हैं उस समय ज्वाइन किया था, उससे उसने शादी कर ली।
वो मेरे समधी भी कर्नल हैं, वो सरदार हैं। मेरी डॉटर ने डोगरी राजपूत फैमिली में, मैं वो भी कर्नल है। तो जब हम इकट्ठे होते हैं, 3 समधी, 3 कर्नल और एक बहू, तो एक माहौल बिल्कुल अफसोस मैच जैसा हो जाता है। रहा सवाल महिला सशक्तिकरण का, मैं बिल्कुल अर्चना जी कह रही थी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महिलाएं दे आर डूइंग वेरी वेल। आर्मी उन्होंने ज्वाइन की है, लेकिन अब ये देखने वाली कोई महिला स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मध्य नजर रखते हुए उनकी ड्यूटीज उसी हिसाब से लगाई जाती है। अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि आर्मी जनरल, मेरे एक बैचमेट थे, रिटायर हो गए, कनेक्टर, उनकी वाइफ वो पहली लेफ्टिनेंट जनरल महिला डॉक्टर कमांडेंट एएफएमसी की पोस्ट पे, उससे भी बड़े पोस्ट पे बनकर रिटायर हुई या अभी भी सर्विस में, तो वो वहां पे पहुंची हैं। तो इस तरह से महिलाओं को अभी जो सरकार ने रूल बनाया है और जिस तरह से परमानेंट कमीशन की परमिशन दी है, उससे और महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारे घर की बेटियां और हमारी जो बच्चियां हैं उनको एक एवेन्यू मिल जाएगा अलग से, कि अगर उनके दिल में इस तरह का आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी समबडी एल्सेस फेस। सर आप का मैं पहचान नहीं रहा आपको, आपका नाम सर कौन है आप? मैडम जरा बताएंगी। आई कैन सी माय somebody on the main screen. Am I visible? Yes, sir. Yes, very much. Sir, what you say is nothing to do with it. Carry on. Okay, sir. Okay, fine. Okay, now let me finish, then I'll ask you a question. Now I come, let me talk about, ये तो मैंने महिला की बता दी, about myself. You see, आर्मी आपको एक एडवेंचरस लाइफ का मौका देती है। मैं ज्यादा अपने प्रोफाइल के बारे में नहीं बताऊंगा। 40 years of service, you have seen every part of country. सियाचिन हो, कारगिल हो, गैंगटॉक हो, ऐसे रिमोट एरियाज जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो हम लोगों ने देखे हुए हैं। मेरी अगर पर्सनली अगर आप देखें तो मैंने नॉर्थ ईस्ट का लिटरली पूरा एरिया बड़े जनरल्स के साथ फ्लाई किया हुआ है। जनरल अनुज यहाँ हैं, उनको ये पता है कि उनकी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है कि वो पूरे एरिया की डिरेक्शन एरियली करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद जो रणनीति बनती है, स्ट्रेटेजी, उसको फाइनलाइज करें। तो इस तरह की हमारी ड्यूटीज, जो जैसे नेवल ऑफिसर और एयर फोर्स वालों ने बताया, जो हमारा इक्विपमेंट होता है वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स करोड़ का होता है। उस जिम्मेवारी के साथ आप नौकरी कर रहे हो। अब एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा जनरल अनुज जहां भी जाते हैं, मिसेज अनुज उनके साथ होती है। यह पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट में कभी आप देखेंगे सब अकेले आते, लेकिन मधु माथुर को कभी देखा आपने, हमेशा साथ होती है उनका। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आर्मी ऑफिसर ज्वाइन करता है, उसकी शादी भी नहीं होती। जब उसकी शादी हो जाती है तो उनकी जो पत्नी है, जैसे मेरी वाइफ है और जो लेडीज है, वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट करती है उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे। मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने आर्मी में रिटायर के बाद 2 साल और उसके पहले भी काफी आवा हैंडलिंग में निकाला, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन। किसी ने अभी मेंशन किया था, आई थिंक कमोडोर चंद्रमौली ने, कि एक बहुत मुश्किल टास्क होती है किसी को यह संदेश देना कि जो आप जिनका वेट कर रही थी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे के ऊपर, वो नहीं आए, उनका पार्थिव शरीर आए। ये कितनी दुखद चीज किसी को कैसे बताई जा सकती है। ये आवा जो आर्मी वाइव्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, मैं श्रीनगर में रहा करीबन 2 साल, वहां पे मैंने आवा हैंडल किया। वहां पे करीबन 80 से 100 आर्मी ऑफिसर्स की फैमिलीज और उससे तिगनी चौगनी जवानों की फैमिलीज रहती है। वहां पे सिंस टास्क ऐसी है, कैजुअलिटी रेट हाई है और वहां आए दिन पार्थिव शरीर आते रहते हैं। आपको उनका जो भी है संस्कार वो करना पड़ता है, आपको वो फैमिलीज हैं उनको हैंडल करना पड़ता है, उनके बच्चों का जहां पे आगे किस तरह से फ्यूचर रहेगा उसके बारे में सोचना पड़ता है। और जब वो अकेली रह रही हैं वहां पे, तो ये सब रोल आर्मी ऑफिसर अकेला नहीं कर सकता। जो भी उस यूनिट की सीनियर ऑफिसर की वाइफ होगी, वो अनपेड सूबेदार मेजर की ड्यूटी करती है वहां पर। वो अपने आप जाके सबका वेलफेयर देखती है। किसी का बच्चे की तबीयत खराब है, उसको ले जाकर के हॉस्पिटल दिखा के आती है। और जो भी उनकी पर्सनल समस्या है, आजकल मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा है आर्मी में, खास तौर से जब लोगों को सेपरेशन सियाचिन ग्लेशियर में बंधा है, 2 साल की पोस्टिंग है,
एक साल उसको आने जाने में करीबन 1.5-2 महीने लग जाते हैं, तो उसको छुट्टी बहुत कम मिलती है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि जो जिससे शादी करके आया था वो वहां पे है ही नहीं, या वो उसको डाइवोर्स करके छोड़ के चली गई, क्योंकि वो इतने मोटिवेटेड नहीं है, और दूसरे उसके पेरेंट्स वगैरह देखते हैं। ऐसी सब समस्याओं से जूझता है हमारा एक सिपाही। और एक हमारा अभी आता है एक पेट्रियोटिज्म के बाद, देशभक्ति क्या है? देशभक्ति की डेफिनेशन आप सब जानते हैं, लेकिन जब युद्ध होता है, जब आपने बहुत सी फिल्म देखी, जब कारगिल वॉर, जो सैनिक लड़ रहा है वो सैनिक किसी यूनिट और बटालियन का एक हिस्सा है। वो सैनिक अपने उसके बराबर में एक सेक्शन के अंदर कमांडर और उसके कलीग है। उस समय जब गोला बारूद तेजी से दुश्मन का आपके ऊपर गिर रहा है, आप फायर कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान है कि ये जो मेरे बराबर वाला जो मेरा साथी है, इसको मैं कैसे बचाऊं, इसको मैं कैसे रक्षित करूं, अपने आप को रक्षा, अपने आप को बचाते हुए उसको कैसे बचाऊं। उस समय देशभक्ति की लिमिटेशन जो एक्चुअल वॉर में उस समय नहीं आती है, उस समय वो वहीं होती है। वो उसको बचाना, अपनी यूनिट का परचम, एक अल्टीमेट लिमिट होती है उसकी, कि यूनिट का नाम, उसको भारतवर्ष एक बहुत बड़ी चीज है, उसको भारतवर्ष का याद नहीं आता, उसको अपने, वो पार्ट भारतवर्ष का, लेकिन अपनी बटालियन, अपनी टुकड़ी, अपना कमांडर, अपने सीओ साहब, इनके लिए वो लड़ाई करता है, वो युद्ध करता है। ये मैं कह रहा हूँ, शायद सब इससे सहमत होंगे। और मैं और क्या आपको मैंने कुछ लिखा था कि मैसेज पूछा था मीना जी ने कि क्या देना चाहते। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ यूथ को अपनी तरफ से, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि एक शेर है कि जाना कहाँ है मंजिल, जाना कहाँ है मंजिल, इसका तो पता नहीं, लेकिन इतना यकीन है कि आगे खड़ा हूं वहां से जहां मैं कल खड़ा था। This is my message to everyone. Please make your vision, make your plan, and keep moving. Thank you very much, and Jai Hind to everyone. सर, थैंक यू वेरी मच सर। और अब मैं आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग 2 मिनट के बाद आपको फिर से लिंक को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं वैसे ही ये सब काम मेरी डॉटर ने किया था, मैं गायब हो गया इसी वजह से। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, बिल्कुल, अभी डॉटर स्टैंड बाई पे हो जाएगा। अब सर अभी है, अभी 2 मिनट है। और तब तक मैं मेजर जनरल अनुज माथुर जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने विचार साझा करें। मैं अभी मीटिंग फिर से शुरू कर दे रही हूँ, आप लोग अभी ज्वाइन कर लीजिए ताकि उनका बीच में जो डिसकंटिन्यू नहीं हो। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, हाँ। मैं सबको कैसे वो करूं? माइक खोलो ना। नहीं बोलना नहीं है मेरे को अपना वो दिखाना है प्रेजेंस में। मतलब कि वेलकम करूं तो कैसे? आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसको मीटिंग को एंड कर रही हूँ। एक बार आप दोबारा, हाँ ओके, कीजिए एंड कीजिए। इसमें आता है क्या?